ایک نبی جو آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، مگر کیوں؟ کیا واقعی حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی یا کوئی اور شخص مصلوب ہوا؟ وہ لمحہ جب حضرت مریم کے سامنے اچانک ایک اجنبی نمودار ہوا اور ایک معجزہ رونما ہوا۔ عیسائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا، مگر قرآن کہتا ہے بندے خدا۔ حقیقت کیا ہے؟ نبی آخر الزمان نے حضرت عیسیٰ سے کہاں ملاقات کی اور کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر کیوں آئیں گے اور ان کا مشن کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ امت کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ کون ہوگا دجال کے انجام کا اعلان کرنے والا؟ زمین پر عدل کی وہ حکومت جس میں شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے۔ اور سوال یہ ہے، جب وہ واپس آئیں گے تو کیا ہم ایمان کے ساتھ ان کے مددگار ہوں گے؟ یہ سب جان پائیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اپنے ذہن میں اٹھتے سوالات کے جوابات حاصل کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، 4 انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ اس سلسلے کے پہلے 3 حصے آپ دیکھ چکے ہیں، حضرت ادریس، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام۔ اور آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی حیات طیبہ پر، جن کی زندگی، آسمان پر اٹھائے جانا اور دوبارہ نزول کے قصے آج بھی دنیا بھر میں موضوع بحث ہیں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے معاملے پر امت مسلمہ کے تمام علماء اور محققین کا اتفاق ہے۔ قرآن کے مطابق وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ وہ دجال کے فریب کو مٹائیں گے، اسے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کریں گے اور دنیا کو امن، عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے نبوت کے زمانے میں تقریباً 33 برس زندگی گزاری اور نزول کے بعد مزید 40 سال قیام فرمائیں گے۔ یوں آپ کی عمر مبارک 63 برس مکمل ہوگی، بالکل ویسی ہی جیسے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن ناظرین، عیسائی محققین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا اور یہی وہ دعویٰ ہے جسے قرآن واضح طور پر جھوٹ قرار دیتا ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی مصلوب ہوئے یا اللہ نے اپنے نبی کو کسی خاص حکمت سے آسمان پر اٹھا لیا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو نہ صرف اللہ کی طرف بلایا بلکہ آنے والے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک زمین پر کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر نازل فرمائی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو اللہ کی طرف سے ہدایت، روشنی اور سچائی کا پیغام تھی۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے والی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اور رہنمائی تھی۔ ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی، اور صرف 3 سال کی مدت نبوت کے بعد یعنی 33 برس کی عمر میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو اپنی قدرت سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں 13 مختلف صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کبھی عیسیٰ کے نام سے، کبھی ابن مریم کے لقب سے، کبھی مسیح کے عنوان سے، اور ایک مقام پر عبداللہ کے طور پر۔ یہ سب القابات ان کی عظمت، بندگی اور اللہ سے قربت کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت مریم بنت عمران کے پاکیزہ نام پر ہے، جس میں ان کی پاکیزہ ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد کے نام سے منسوب ہے، جس میں ان کی ولادت اور قبولیت خاص کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں اس دسترخوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے نازل ہوا۔ یہ وہ منظر تھا جس میں ایمان، یقین اور اللہ کی قدرت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ ناظرین، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس کے قریب اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھیں۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی حصے میں گئیں اور پردہ کر لیا۔ اسی خلوت میں اچانک ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ در حقیقت وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور لرزتے دل سے بولیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ فرشتے نے اطمینان سے فرمایا، میں ڈرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تیرے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے۔ یہ سن کر حضرت مریم حیران رہ گئیں اور عرض کیا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی قدرت کی ایک نئی نشانی ظاہر کرے، جیسے اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اب اپنی تخلیق کی عظمت ایک بار پھر دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ناظرین، بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور واپس تشریف لے گئے۔ چند دنوں بعد جب حضرت مریم کو پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے تو وہ تنہا خاموشی سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کے علاقے کی طرف نکل گئیں، ایک پہاڑی کی جانب جسے کوہ سراہ کہا جاتا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جو بعد میں بیت اللحم کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر تنہائی، زچگی کی شدت اور لوگوں کے طعنوں کے خوف نے حضرت مریم کے دل کو غم سے بھر دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے اختیار بول اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی ہوتی۔ ناظرین، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، جب حضرت مریم کے 40 دن پورے ہوئے اور طہارت حاصل ہو گئی تو وہ اپنے نومولود بیٹے کو گود میں لے کر واپس اپنے گھر آئیں۔ قوم نے جب انہیں دیکھا تو حیران رہ گئی، زبانوں پر تانا، مریم یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ وہ جو ساری زندگی عبادت گزار، پاک دامن اور پارسا تھیں، آج لوگوں کے تانے ان کے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ اور پھر ناظرین، وہ لمحہ آیا جب خاموش ہجوم کے بیچ ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ جو اس وقت گود میں دودھ پی رہے تھے اچانک رک گئے اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پہلا کلمہ تھا جو ان کے مبارک لبوں سے نکلا۔ پھر فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور آخر میں اعلان فرمایا، سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، یہ وہ کلام تھا جس نے مریم کی پاک دامنی پر مہر تصدیق لگا دی۔ لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئیں اور عیسیٰ
अल्लाह के बरगजीदा नबी के तौर पर पहचाने गए। नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 7 साल हुई तो हज़रत मरियम ने उन्हें दर्स व तालीम के लिए मुअल्लिम के पास भेजना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब नन्हे ईसा अल्लाह की तरफ से इल्हाम किए गए अजायबात का मुशाहिदा किया करते थे। ऐसे अजायबात जिन्हें देखकर अक्लें दंग रह जाती। ये खबरें जब यहूदियों में फैलने लगीं तो उनके दिलों में हसद और खौफ ने जगह बना ली और यूं उन्होंने ईसा के खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त आपके ख़ानदान के लोग ईसा और उनकी वालदा मरियम की बेहद इज्जत करते थे, मगर यहूद अपने कीना और इनाद में अंधे हो चुके थे। उन्होंने माँ बेटे दोनों पर एतराज़ात और इल्ज़ामात का तूफ़ान खड़ा कर दिया। नाज़रीन, ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल के नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम को राह हिदायत की तरफ बुला रहे थे, मगर यहूद अपनी पुरानी सरकशी, ज़िद और गुनाहों की आदतों में डूब चुके थे। वो नबी खुदा हज़रत ज़करिया की नाफरमानी करते और उनकी तालीमात को झुटलाते रहते। बैतुल मक़दस के हालात बिगड़ने लगे। ऐसे में हज़रत मरियम ने अपने नन्हे बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और हिजरत करके मिस्र चली गईं। वहाँ वो कई बरसों तक मुकीम रहें। पूरे 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस फ़लस्तीन तशरीफ़ लाएं और तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाई। उन्हें इंजील अता की और तौरात का इल्म व फ़हम बख्शा। अल्लाह ताला हर नबी को अपने ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक मुआजिज़ात से नवाजता है ताकि उनकी सदाकत वाज़े हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बेशुमार करामात अता हुई। सबसे पहला मुआजिज़ा तो आपका बग़ैर वालिद पैदा होना था। गहवारे में आकर आपने अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी और फिर नमाज, ज़कात और नबी होने की निशानियों से लोगों को हैरान कर दिया। मट्टी से परिंदा बनाना, पैदाइशी नाबीना को बीनाई देना, बरस और कोढ़ के मरीजों को शिफा बख्शना, मुर्दों को जिंदा करना, ये सब अल्लाह के हुक्म से आपके मौजज़ात थे। आप लोगों के छुपाए हुए खाने और ज़ख़ीरे की बातें बताते और आखिरकार अल्लाह ने आपको एक अजीब हिकमत के तहत जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया। कुर्बे क़यामत के नज़दीक आप दोबारा ज़मीन पर आएंगे। उम्मत मोहम्मदिया के साथ खलीफतुर रसूल के तौर पर अदल कायम करेंगे, दज्जाल को हलाक करेंगे, सलीब तोड़ेंगे और ज़मीन में अमन व बरकत कायम करेंगे। जैसा कि कुरान ने फरमाया, आप माँ की गोद में भी और अधेड़ उम्र में भी कलाम करेंगे। यह अल्लाह की कुदरत और वादे की हकीकत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ना कोई घर था, ना ही बीवी या औलाद। आप पूरी ज़िंदगी शहर शहर, बस्ती बस्ती घूमते, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते और दीन हक की दावत देते रहे। जब कहीं ज़रूरत पेश आती तो अल्लाह के हुक्म से मोजज़ात के ज़रिए लोगों की मदद फरमाते, मगर इसके बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत ने आपको झुटलाया और तकलीफ़ें दी। अलबत्ता कुछ सादतमंद लोग ऐसे भी थे जो आप पर ईमान लाए, आपके साथ खड़े रहे और दीन के काम में आपके मददगार बने। कुरान करीम ने उन नेक लोगों को हवारियून के नाम से याद किया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक उन करीबी हवारियीन की तादाद 12 थी। हवारी का मतलब है मददगार। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। सही बुखारी। नाज़रीन, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए तो वक्त गुजरने के साथ उनकी उम्मत ने असल तालीमात को बदल डाला। नसारा यानी ईसाइयों ने अल्लाह ताला के साथ न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बल्कि हज़रत जिब्राइल को भी खुदाई में शरीक कर लिया। यही नहीं, बाज़ ने तो हज़रत मरियम को भी खुदा का दर्जा दे दिया। वक्त गुजरने के साथ ईसाई कई फ़िरक़ों में बट गए। इब्तदा में 3 बड़े फ़िरक़े सामने आए। नंबर 1 तिस्तोरिया, जो कहते थे कि ईसा खुदा के बेटे हैं। नंबर 2 याकूबिया, जो समझते थे कि खुदा और ईसा एक ही हस्ती हैं।
नंबर 3, मलकानिया, जो यकीन रखते थे कि 3 खुदा है, बाप, बेटा और मरियम। यही अकीदा बाद में तस्लीस यानी ट्रिनिटी के नाम से मशहूर हुआ, जिसका मफहूम है खुदाई 3 में पोशीदा है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। यूं हजरत ईसाई जो बंदगी और तौहीद का पैगाम लेकर आए थे, उनके मानने वालों ने उन्हें ही माअज़ल्लाह खुदाई के दर्जा तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर उन तीनों बातिल अकायद की तरदीद फरमाई और अहले किताब को बारहा मुतनब्बा किया, इस शिर्क से बाज आ जाओ। सूरह निसा में अल्लाह ने कहा, अहले किताब अपने दीन में हद से न बढ़ाओ, मसीह इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल है, ना कि अल्लाह की ज़ात। सूरह अल माइदा में हुक्म मिला कि जो लोग कहते हैं मसीह ही अल्लाह है, वो हक से दूर हो गए हैं, और ये सोच कर देखो कि अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ मिटा दे, तो कौन उसका इख्तियार छीन सकता है। और सूरह मरियम में अल्लाह ने सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अल्लाह का बेटा कहना एक बड़ा इफ्तरा है, जो कायनात के ज़वाबत के खिलाफ है और सख्त नताइज का बायस बनेगा। मुख्तसरन कुरान हमें सिखाता है कि तौहीद इलाही लाजमी है। किसी को अल्लाह के बराबर या उसका शरीक ठहराना ईमान की बुनियादी हकीकत के मनाफी है, और यही शिर्क अजीम है। अल्लाह हमें शिर्क जैसे बड़े गुनाह से महफूज फरमाए, आमीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उन लोगों को सीधी राह दिखाते रहे जो गुमराही में पड़ गए थे। आप उन्हें तौहीद, नरमी और सच्चाई की दावत देते, मगर यहूदियों ने आपकी बात ना मानी, बल्कि आपकी मुखालफत और तौहीन करते रहे। नबूवत के सिर्फ 3 ही साल गुजरे थे कि बनी इसराइल ने आपको अपने मफाद के लिए एक बड़ी रुकावट समझा और कत्ल की साजिश तैयार कर ली। उस वक्त शाम का इलाका रोमी सल्तनत के कब्जे में था और वहां एक काफिर हुक्मरान मुकर्रर था। यहूदियों ने उसके सामने हजरत ईसा के खिलाफ झूठी बातें की, यहाँ तक कि उसने उनके कहने पर हजरत ईसा को सूली देने का हुक्म दे दिया। सूरत निसा की आयत 157 और 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमने मरियम के बेटे हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि वो न कत्ल हुए और न सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि उनके लिए एक मुशाबाह बनाया गया और हकीकत में अल्लाह ने आपको अपनी तरफ उठा लिया। इमाम कुर्तुबी ने रिवायत की है कि जब यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आप अपने हवारियों के साथ जमा हुए। दुश्मनों ने हजरत ईसा का पता लगाकर तकरीबन 4000 अफराद के साथ मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, क्या तुम में से कोई तैयार है कि वो मेरे लिए कुर्बानी दे और फिर जन्नत में मेरे साथ हो। एक हवारी ने ये कुर्बानी कबूल की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपना लिबास और इमामा अता किया और अपनी शक्ल उस पर डाल दी। जब वो बाहर गया तो यहूद ने उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हकीकत में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमानों पर उठा लिया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल न सिर्फ एक अजीम वाक़या है, बल्कि यह क़यामत के करीब उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और क़यादत का सबब भी होगा। आप दज्जाल को शिकस्त देंगे और खंजीर को मारेंगे, सलीब को तोड़कर दुनिया से झूठे खुदाओं के आसार मिटा देंगे। याजूज और माजूज का फसाद आपकी बद्दुआ से ख़त्म होगा, ज़मीन में अमन व अमान कायम होगा और इस्लाम गालिब रहेगा। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इन अहादीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और दीगर बुज़ुर्ग सहाबा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमश्क में मीनारे शर्किये के पास नुज़ूल फरमाएंगे जब फजर की अजान हो रही होगी। इमामत के लिए इमाम मेहदी खड़े होंगे। हज़रत ईसा के नुज़ूल के बाद वो पीछे हट जाएंगे और इमामत कराएंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इब्ने मरियम नाजिल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खंजीर मारेंगे, जिज़्ये उठाएंगे,
और मालो दौलत इतनी होगी कि कोई उसे कबूल ना करे, बल्कि एक सजदा दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। नाज़रीन, सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज की रात आसमानों पर ले जाया गया तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, मुतहर्रिक और जोशीले घुंघरियाले बालों वाले। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दरमियाने कद के, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले, जैसे अभी अभी गुस्ल खाने से निकले हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनसे सबसे ज़्यादा मुशाबे हूँ। मस्नद अहमद में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत में मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि हमारे दरमियान कोई नबी नहीं। जब वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो दरमियाने कद खुश रंग व खुश कामत और जिस्मानी खुशनुमा होंगे, जैसे उनके बाल अभी अभी नहाए हों। उनके ज़माने में ज़मीन पर सिर्फ इस्लाम कायम होगा और अमन व खुशहाली होगी। शेर और भेड़, बच्चे और सांप सब एक साथ बग़ैर खौफ के रहेंगे। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 साल तक क़याम फरमाएंगे और वफ़ात के बाद रोज़े अतहर में दफन होंगे, जहां आज भी उनकी कब्र की जगह बाकी है। नाज़रीन, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, करामात और शख्सियत पर तफसीली बात करने के लिए एक तवील नशिस्त दरकार होगी, लेकिन हमने आपके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तसर, जामे और दिलचस्प अंदाज में सब कुछ पेश कर दिया है। आपने देखा कि नसारा यानी ईसाइयों ने किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकी तालीमात को पस पुश्त डालकर उन्हें खुदा का दर्जा और अल्लाह का बेटा करार दे दिया। लेकिन यह सिर्फ तारीख की बात नहीं, इस दावे के पीछे अल्लाह ताला की सख्त तंबीह और अजाब आज भी हर इंसान के लिए सबक आमोज है। ये थी 4 अनबिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा हैं के सिलसिले की आखिरी वीडियो, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी व करामात, दोबारा नज़ूल, क़यामत के करीब ज़मीन पर क़याम और दज्जाल के ख़िलाफ़ क़यादत के हक़ाइक़ मुख्तसरन पेश किए गए। हमने जहाँ तक मुमकिन हुआ कुरान, हदीस और अहले इल्म व मुहक्किकीन की आरा आपके सामने रखी है। और याद रखें, असल हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुँचें। माइंड स्पार्क बाय जी के साथ जुड़े रहें और यकीन करें हम जल्द एक और शानदार वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।